Next Olympics, are we looking at Neeraj Chopra or are we looking at many other Neeraj Chopras? He is capable, he is doing well, he is winning every title. मुझे लगता है इतने सालों में और लोगों ने नहीं खेलना शुरू किया है. Olympics 2016, Sindhu and I played 2008. 20 Sindhu played, this also she played. बट और बच्चे आ जाने चाहिए ना अभी तक. स्पोर्ट्स करियर इज वेरी शॉर्ट, सो आपको लगता है कि 34 में जब हो गया तो उसके बाद क्या? 34. Yeah, you pushed so much. But that's because I want to win. I want to do well for my country. I just stopped playing because of my arthritis. My cartilage is gone completely in the knee. 25 years of pushing and killing the knee. हमारा body आधा टूटा हुआ है. When everyone started recognizing you, did that change you in any way? मुझे सिर्फ पता था अच्छा खेलना है, जीतना है. जब मुझे attention मिलने लगा and then I was in the papers. But I didn't realize कि when you lose matches भी थोड़ा backlash होता है ऐसा. आप इस पे अगर give up कर देंगे तो then you are not a sports person. You know, sports person is always like trying. मैं कर सकती हूँ तो सब लड़कियां कर सकती हैं. Yeah, हम लड़कों से कम थोड़ी ना है. You can't think of badminton and not think of her. A true trailblazer in Indian sports. She's rewritten the rules while playing by the rules. She's smashed stereotypes and records as fast and hard as her own smashes. From humble beginnings to becoming the world's number one, she's conquered hundreds of courts and billions of hearts. She didn't just dream, she dominated. She didn't just lift trophies by the weight of an entire nation. She's not a player, she's the movement. It's such an honor to sit across someone that I've looked up to, someone who was a role model for me growing up. Saina, thank you so much for being here with me today. Welcome to Sustainability with Shreya. And I can't tell you how excited the little girl in me is to have this conversation with you today. Thank you so much for having me, and it feels so special when someone gives you such kind of recognition. Thank you so much for You've earned it. You deserved words. it in every sense of the way. Thank you. And the testimony of that work is you're India's first Olympic badminton medalist, the first and only female player in the country to become the world's number one, a winner of 24 international titles, including 11 Super Series wins, recipient of the Padma Bhushan, Padma Shri, Arjuna Award, to name a few. And I think the list would just go on and on and on if I were to continue. But being the torchbearer for badminton in India, how have you dealt with the pressure of being the number one, receiving all these accolades, being the reason for the sport's popularity in this country? What does it mean to you to hold so many records and to create history the way that you've created history? I think, first of all, I would say that maybe it was just destined for me to be in this sport. Papa is a scientist, mummy housewife. So I don't know from where anyone could have thought about कि इसको world number one बनाना है या Olympic champion बनाना है. So these were just the thoughts which used to come in my mom's mind because she used to love watching all the sports. Papa is big hockey lover. He just loves watching hockey. And from somewhere I thought they had that kind of confidence कि इसको sports person बनाना है when I entered into the sport. But initially, when I was in Hisar, it was all about playing all kind of sports. Luckily, we didn't have phones at that point of time. So I could spend a lot of my time on ground. I could, just spend like 8 to 10 hours. मुझे अच्छा लगता था जितना भी खिलाओ मुझे अच्छा लगता था. लेकिन my parents used to play in the club. खेलते थे बैडमिंटन and the only sport I should not play was badminton. Why? And मतलब वो खेलते थे, so I should just run away from that and I used to play all other kinds of sports and enjoy with my friends. And one fine day Papa gets promoted and he says कि हमें हैदराबाद shift होना है. And then I'm like, Papa, नहीं, मेरे पूरे friends यहाँ पे हैं, I don't want to leave them. But he's like, I was only 8, I was very small. And then he was like, नहीं जाना पड़ेगा. So then I think, family was like, जाना ही है. So we moved to Hyderabad and then I'm missing my friends and there's a lot of language barrier and initially लगा मुझे थोड़ा tough हो रहा था. So I told my papa कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है स्कूल के बाद that मुझे sports खेलना है कुछ. I want to do something, make friends and थोड़ा time ऐसा करना है मुझे sports खेल के. So कराटे चल रहा था घर के पास. And I did karate for 1 year and I got brown belt in that. Really? So yeah, I'm very proud actually. Karate कर पाई मैं. It was so difficult that black belt एक ही रह गया था.
but they used to make you do some difficult stunts. Karate में होते हैं that's the beauty of karate, you know. I But went as far as green belt, that's it. So I wouldn't know. हाँ I नहीं don't नहीं, even know what it it's is. a very good thing, you know. Karate करना चाहिए, whatever belt is, but you are actually learning, you know, something. It's not easy to learn. It's very difficult, but अच्छा लगता है लड़कियां अगर कराटे में है तो यू फील स्ट्रांग, राइट? तो मुझे भी मज़ा आया, कर रही थी मैं। और थोड़ा 1 साल के बाद मुझे लगा थोड़ा टफ हो रहा है फॉर एन 8 ईयर ओल्ड। सो आई वाज लाइक पापा कुछ दूसरा स्पोर्ट करते हैं, यू नो, इट्स गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइट, यू नो, स्पायरिंग होता है, बॉयज़ के साथ लड़ाई होता है, एंड देन यू हैव सम डिफिकल्ट movements there, and then the coaches are making you do difficult stunts, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मुझे, एंड आई वाज लाइक पापा कुछ ऐसा करते हैं दूसरा स्पोर्ट थोड़ा इजी हो, मतलब आई कैन स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स एंड थोड़ा सा मतलब टाइम पास भी हो जाए, और देन आई कैन गो टू स्कूल एज वेल। बट आई डिडंट नो, वन ऑफ माय फादर्स फ्रेंड वाज लाइक साइना को बैडमिंटन में डाल सकते हैं, यू नो, इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट हियर, ऑफ कोर्स नॉट वेरी पॉपुलर बट इट्स गुड, यू नो, देयर इज प्रॉपर फैसिलिटी, स्टेडियम है, कोचेस हैं, तो साइना कैन गो देयर बिफोर, यू नो, बिफोर द स्कूल एंड आफ्टर द स्कूल, एंड देन उसको भी मतलब फ्रेंड्स मिल जाएंगे, एंड देन शी कैन एंजॉय हर टाइम। सो यू नो, आई वेंट टू द कोचिंग कैंप, एंड द कोच वाज लाइक, इस साल के एडमिशन्स तो खत्म हो गया, आप नेक्स्ट ईयर आइए। तो पापा वाज लाइक, सर एक बार देख लीजिए इसको खेलते हुए, अदरवाइज अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू करवाइए, अदरवाइज यू कैन टेक अ डिसीजन। तो मुझे लगा अच्छा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब प्रोफेशनली चल रहा है, मतलब ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग रियली वेल, और मैं बिगिनर की तरह, आई डोंट नो हाउ विल आई प्ले, सो आई वाज गेटिंग लिटिल स्कैर्ड। बट देन ही, आई डोंट नो व्हाट पापा स्पोक टू हिम, ही एक्सेप्टेड कि साइना को खिला दो, एंड देन द फर्स्ट शॉट आई हिट वाज अ स्मैश, कैन यू बिलीव इट? No way. इट वाज सच अ you know, my father was also surprised, कैसे हो सकता है, you know, when you play just for the first time, holding the actually देखती थी मैं उनको खेलते हुए, बट वो पहले दिन ही होगा मैंने जब रैकेट पकड़ा है, एंड आई हिट अ स्मैश, एंड द कोच वाज लाइक, इसको लेके आओ प्लीज, इसको लेके आओ, आई थिंक शी कैन बी अ गुड प्लेयर। बट मुझे नहीं पता था कि जो जो 1 मंथ का समर कैंप होगा, यू नो, आई द ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, आई रियली एंजॉयड ऑल दैट। जो कंपटीशन मुझे बॉयज़ के साथ करने को मिला, यू नो, आई शुड लव कम्पीटिंग विद बॉयज़, एंड थोड़ा बचपने में होता है ना, वो आपको अच्छा लगता है कि वो फास्ट भाग रहा है तो आप भी फास्ट भागें उससे, आप भी, वो अच्छा कर रहा है तो उससे बेटर करो, क्योंकि लड़कियां थोड़ी कमी होती थी स्पोर्ट में, मैंने इतनी लड़कियों को देखा नहीं था उस टाइम पे, 1-2 लड़कियां ही होंगी, बट मोस्ट ऑफ देम वर बॉयज़, एंड दे वर ऑल एक्चुअली ट्रेनिंग वेरी हार्ड। बट मुझे उस टाइम पे मतलब नहीं पता था ट्रेनिंग हो रही है, आई जस्ट थॉट कि कुछ चल रहा है, यू नो, टाइम पास के खेल लिए रहे बस हैं, अच्छा खेल रहे खेल हैं। रहे हैं, हाँ। इट वाज नॉट लाइक ट्रेनिंग है या कुछ उसका एक रिजल्ट है या उसके लिए डिस्ट्रिक्ट खेलना है या स्टेट लेवल खेलना है। मुझे बस इतना पता था स्कूल से पहले 2 घंटे कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्कूल में जाके मुझे बस पढ़ाई करनी है, अच्छा लगता है। आई जॉइन्ड समर कैंप, मतलब रेगुलर्स जॉइन हो गई मैं, एंड देन विदिन 1 मंथ आई प्लेड द स्टेट चैंपियनशिप्स अंडर 10, एंड आई वन द स्टेट चैंपियनशिप, एंड इमीडिएटली आई प्लेड द अंडर 10 रैंकिंग टूर्नामेंट्स नेशनल लेवल पे, वो भी जीतना शुरू कर दिया था मैंने। तो द इम्प्रूवमेंट वाज सो फास्ट कि मुझे इतना टाइम नहीं लगा कि मैं अपना रिजल्ट्स दिखा सकूँ। सो विदिन 1 मंथ आई वाज स्टेट चैंपियन अंडर 10, विदिन 1 मंथ आई वाज नेशनल चैंपियन, उसके बाद अंडर 10 नेशनल चैंपियन, और जब मैं 11 इयर्स की हुई तो आई वाज ऑलरेडी विनिंग अंडर 13 नेशनल चैंपियनशिप, अंडर 16 नेशनल चैंपियनशिप, अंडर 19 भी जीत गई मैं, एंड देन द ओनली थिंग वाज लेफ्ट वाज सीनियर्स का। तो 1-2 years तो आई डिडंट ट्राई इट, बट 13 में आई ट्राइड द सीनियर्स एज वेल। तो इनिशियली 1-2 years आई लॉस्ट टू अपर्णा जी, जो माय सीनियर प्लेयर हैं, बट 14 में आई वन द सीनियर्स एज वेल, यू नो, 14 में जब वो रिटायर हो गए थे। तो जो भी चीज़ आई थिंक जो करियर में आया बहुत जल्दी आया, स्टेट चैंपियन बहुत जल्दी बनी मैं, नेशनल चैंपियन बहुत जल्दी बनी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई वाज इन द सीनियर इंडियन टीम एट द एज ऑफ 12, थॉमस ह्यूबर कप जो होता है हमारा टीम इवेंट्स। सो उस टूर्नामेंट में मुझे खिलाया नहीं गया, क्योंकि ऑफ कोर्स अपर्णा वाज अहेड ऑफ मी, सो शी वाज प्लेइंग, एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी टू सी द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स दिख रहे हैं मुझे वहाँ पे। मुझे पता चल रहा है चाइना, कोरिया, सब कैसे जापान कैसे प्लेयर्स हैं, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, हाउ आर दे सो स्ट्रांगली बिल्ट, आल्सो दे वर प्लेइंग लाइक, इतने लंबे रैलीज हो रहे हैं, एंड आई वांट टू विन, यू नो, आई Did वांट that टू डू वेल। intimidate you? आप जब उनको I देखते got थे, did scared, you that? know, because the first exposure outside in the seniors level, you know, because juniors में मैंने खेले कम होंगे, मैंने I just played 2-3 tournaments, but internationally मैंने एक ही अंडर 19 का खेला था, वो मैं जीत गई थी, but suddenly जब मैं seniors में आई, then I found कि इतना difference है, it was ज़मीन आसमान का फ़र्क है जैसा हो गया था एकदम, क्योंकि you're seeing them like so इतने लंबे रैलीज, इतने फिट, you know, you see the
bodies are so strong, muscular. Like I feel they're also very naturally having that build. China, Japan, Korea, Indonesians, they have very good build basically. हमें क्या है वैसा बनाना पड़ता है अपने बॉडी को टू लुक लिटिल स्ट्रांग एंड थाइज को टोन करना पड़ता है टू मेक बिग थाइज बिकॉज बैडमिंटन में यू हैव टू वर्क अ लॉट लोअर बॉडी का बहुत काम होता है तो यू हैव टू पिक अप दैट ऑलमोस्ट 100 किलो 120 का स्क्वाट्स करने पड़ते हैं इट्स वेरी यू हैव टू रियली मेक योर थाइज वेरी स्ट्रांग एंड बिग And what is court work? वो shadows कराते थे. I वो सब remember आई एम जस्ट वो, टेलिंग फर्स्ट द yeah, it बॉडी was- वर्क इज लाइक दैट मेक Yeah. योर calf strong, make your thighs strong and then shoulders, back, core. So everything is like मैं उनको देख रही हूँ तो they are like they're able to do each rally for what 30-40 shots and it's very very nice to see कि कैसा हो रहा है. I am understanding what international level badminton is and now it's the time because Aparna is playing the match. I am seeing her play. Only one women player gets to play and then उनके पीछे दो और थे वर्ल्ड रैंकिंग में तो मुझे उधर चांस नहीं मिला था तो मैं वहाँ पे जाके इमीडिएटली आई टू गो एंड रन फॉर 2 hours. मुझे लगता था इनकी तरह बनना है तो मुझे जाके 2 घंटे भागना पड़ेगा so that I can play against these best players. 2 घंटे भागती थी फिर जाके जिम करती थी एंड देन फिर से जब मैच होता था फिर देखती थी एंड देन इमीडिएटली इन द नाइट आई टू गो टू द जिम एंड डू माय वर्कआउट के if I have to compete with them I have to become like that it's not easy कि आप international level खेल लो and then you're losing to them like easily ऐसा होना नहीं चाहिए when you're playing them you have to give them tough fight इतना ही था मेरा aim to give them tough fight so when I 12-13 तक till then Gopi sir retired. Gopi sir won the All England Championship and he had some issue with his knee so he retired. तो उन्होंने छोड़ दिया तो then he was like I will take over as a coach and I will take Saina and all the younger players and I'll coach them. So we were very excited. Now I think we have a world's best player who is going to help us with the training and he won the All England Championship also. So he's got a lot of knowledge to how to play at the highest level. And I was 13 and the other players were like 13-14, same age. So we were waiting for his, what kind of program he's going to give. What is he going to make us understand कि highest level पे होता क्या है कैसे करना है तो he gave us the thing कि आपको first of all I'm a vegetarian तो उन्होंने बोला कि प्रोटीन थोड़ा खाना पड़ेगा because you're traveling outside तो थोड़ा बहुत प्रोटीन की इनटेक होनी चाहिए एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड देन आपको वहाँ पे अगर वेजिटेरियन खाना नहीं मिला तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सो दैट्स हाउ ही मेड मी चेंज माय फूड अलॉट एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग का बताया कि यू आर ट्रेनिंग मैड ट्रेनिंग कर रहे हैं आप 9-10 घंटे दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड वी हैव टू डू द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग बट फॉर लेस पीरियड ऑफ टाइम जस्ट लाइक 7.5 hours तक कर सकते हैं उसमें आपकी ट्रेनिंग रहेगी लाइक शैडोज लाइक एजिलिटी लाइक रनिंग लाइक शैडोज इज सो डिफिकल्ट मतलब शैडोज का एक्चुअली मीनिंग इज नॉट लाइक यू आर प्लेइंग इट्स फास्टर देन प्लेइंग क्योंकि आपको वहाँ पे शटल नहीं है यू आर जस्ट डूइंग द शैडो एंड कमिंग तो इट्स इवन मोर फास्टर सो इतना सांस चढ़ता है ना उसमें यू कैन एक्चुअली ये हो क्या रहा है सो ये सब ट्रेनिंग करने का जो शेड्यूल दिया देन यू हैव टू वर्क ऑन योर टेक्निक देन यू हैव टू take some rest, eat, sleep, come back and then again do weight training and make yourself, if you want to do again more technique to improve your strokes, you can do that. Otherwise, whatever, makes you feel better, maybe थोड़ा skipping कर लिया या जो भी सब कुछ मतलब ऐसे होता था सेशन सुबह और शाम का. That's intense. And it's like बहुत intense है लेकिन शॉर्ट सेशंस you're not killing yourself for क्योंकि आप जैसे हाईएस्ट लेवल पे खेलेंगे तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा है स्पीड है एंड्योरेंस है सब कुछ इन्वॉल्व है सो आई थिंक द इनपुट वाज सो गुड दैट रिजल्ट स्टार्टेड शोइंग विद इन 1-2 years and suddenly from world number 100 I came down to I think 30 या 25 तक आ गई थी मैं and उसके बाद तो there was no looking back I was 18 when I played my first Olympics and played couple of semi-finals because that point of time they were like in top 10 almost 7-8 Chinese and एक मैं और एक दो और थाईलैंड के प्लेयर्स या हांगकांग के प्लेयर्स थे सो टॉप 20 में आई थिंक आपको 11-12 चाइनीज ही मिल जा रहे थे उस टाइम पे फिर कोरिया हो गया जापान हो गया मलेशिया हो गया सो आई थिंक द कंपटीशन वाज लाइक दैट कि हर एक राउंड में आपको चाइना जापान ये सब मिलते ही जा रहे थे एंड यू हैव टू प्ले लाइक 17 टूर्नामेंट्स इन अ ईयर तो एवरी टाइम देयर इज नो चांस कि आप इंजरी के लिए बैठ जाएं या रिकवर होने के लिए टाइम लगाए बिकॉज एवरी 2 weeks यू हैव टूर्नामेंट यू हैव टू गो फॉर 3 weeks अगेन 2 weeks प्रिपेयर गो बैक तो आप आधा टाइम तो यू आर नॉट इवन
समटाइम्स नॉट इवन प्रिपेयर्ड फुली, बट आपको खेलना पड़ेगा बिकॉज यू हैव लाइक रैंकिंग है आपका, यू हैव टू मेंटेन योर रैंकिंग, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और ओलंपिक्स के लिए 4 साल में यू हैव टू मेंटेन द रैंकिंग. All these kind of stress and everything comes with it, you know. Yeah. This happened slowly and I understood that I'm going in the right direction, you know. It was just that I started as a, you know, time pass thing and somewhere things started falling so fast for me कि मम्मी को भी लगा कि काफ़ी फास्ट हो रहा है, बिकॉज शी ऑब्वियसली हैड दैट विजन कि इसको ओलंपिक चैंपियन या जो भी बनाना है. बट जो चीज़ें मेरे साथ इतने फास्ट होने लगी, जब मेरा कोई ऐसा आई डिडंट हैव एनीवन टू लुक अप टू, स्पेशली इन वुमेन, यू नो. ऐसा Exactly. कोई था नहीं कि There जो was फर्स्ट no सेकंड blueprint कि कोई था नहीं कि फर्स्ट सेकंड राउंड क्रॉस कर रहा था. एंड सडनली समवन इज थिंकिंग कि साइना कैन डू वेल एट द हाईएस्ट लेवल. सो इट वाज लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल. बट जैसे रिजल्ट्स आने लगे, I understood that if you have good coaches, the results will come. So I think that's how obviously I did a lot of hard work. Hard work तो होता ही है to win tournaments. But the inputs always helps you. कि कहाँ क्या training change करना है, and that's why coaches are very important. And then I can definitely say 15-16 was the age where I thought कि मेरा इस game में कुछ career बन सकता है. And luckily I got some help from मिथल्स चैम्पियंस ट्रस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो, उन्होंने हेल्प किया मुझे. एंड देन योनेक्स केम इन द किटिंग स्पॉन्सर, एंड देन भारत पेट्रोलियम केम इन. सो दीज 2-3 स्पॉन्सर्स आई हैड, एंड जितना भी हो सका उनके फंडिंग से आई प्ले टूर्नामेंट्स, एंड देन आई कुड बाई माई इक्विपमेंट्स, शूज़ एंड एवरीथिंग. और वो मुझे 2-3 साल के लिए हेल्प किया बहुत. good amount of support to at least push you in that. 15-16 में. But from the age of 9 and till 15-16, there was only my father's borrowing money from his friends and taking some loans from the bank. That's so sweet. That's so sweet of him. But also आपको 50,000 सैलरी मिल रहा है. Yeah. And then आपको छोटी बेटी और बड़ी बेटी का दोनों को ध्यान रखना है. She is studying, तो थोड़ा एजुकेशन में ऑब्वियसली आपको पता है कितना इट्स नॉट ईजी, यू नो. उधर भी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है. तो आई कैन ओनली फील नाउ कि क्या डिफिकल्टी ही मस्ट हैव फेस्ड. एंड मम्मी इज हाउस वाइफ, तो 3 लोगों का एक्चुअली ही हैज टू टेक केयर, संभालना, एंड देन सपोर्टिंग योर आई फील ही इज वेरी स्ट्रांग हियर बिकॉज इट्स नॉट ईजी. उन्होंने गिव अप नहीं किया, ना मुझ पे, ना मेरी मम्मी, ना मेरी बहन पे. एंड ही वाज लाइक ये कुछ करके दिखाएंगी, एंड आई शुड जस्ट सपोर्ट देम वेरी वेल. इनफैक्ट सम टूर्नामेंट्स ना मैं बोलती थी पापा नहीं चलेगा, मैं ट्रेन में कर लूंगी, बट इस नहीं तो एयर में जा, सो दैट यू डोंट फील टायर्ड. मतलब ट्रेन की जर्नी भी लॉन्ग होती है ना, वन डे यू रीच टू दैट प्लेस. सो ही इज लाइक नहीं प्लेन में जा एंड यू कैन रिकवर ऑल्सो वेल. नहीं पापा खर्चा ज़्यादा है. ही ऑल्सो लाइक नहीं, डोंट वरी, दैट विल सी, you just go and play. What's the biggest lesson your losses have taught you? Biggest lesson is that it makes you strong. It makes you feel that कि आपको और सीखना है. Player is never complete. You have to keep learning. You have to keep learning. जितना भी आपका अच्छा स्मैश हो या ड्रिबल हो, उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. You can't say कि ये ठीक है मेरा, मैं दूसरा प्रैक्टिस कर लूँगी. उसको भी करना है और दूसरे को भी इंक्लूड करना है. And that's when you will बी लाइक कि मैं कंप्लीट प्लेयर हूँ. एंड देन दैट्स व्हाट आई सेड ना, ट्रेनिंग में जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी इंजरी, एवरीथिंग इज गोइंग द वे यू लाइक इट, दैट्स व्हेन द रिजल्ट्स विल कम. एंड सो मेनी प्लेयर्स गेट इंजर्ड ऑल्सो, थोड़ा इश्यूज रहते हैं. एवरी प्लेयर इन द सर्किट विल हैव सम निगल्स. ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है आई फील जो बिल्कुल 100% विदाउट एनी इंजरी. इंजरी मतलब बिग इंजरीज नहीं, थोड़े निगल्स रहते हैं, कुछ स्टिफनेस, कुछ पेन रहता है. सब प्लेयर्स थोड़ा बहुत इश्यूज के साथ खेलते ही हैं. इतने सारे टेप्स देखेंगे आप लगे हुए हैं, इधर टेप होगा, इधर टेप होगा, बट एवरी प्लेयर इज प्लेइंग विद सम काइंड ऑफ इश्यूज. लेकिन दे डोंट गिव अप, दे वांट टू फाइट, दे वांट टू विन, एंड दैट्स व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ प्लेयर. तो चैलेंजिंग है, बट देन फाइनली यू स्टैंडिंग ऑन द पोडियम, यू विनिंग मेडल्स. उससे बड़ा आई थिंक सेटिस्फैक्शन और क्या है. और अभी के बच्चों को तो इट्स मोर क्लियर, यू नो, दे आर सो स्मार्ट दैट दे नो के हु इज वर्ल्ड नंबर 1, हु इज वर्ल्ड चैंपियन, हु इज एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट. Chirag Satvik, Asian Games gold medalist. Sindhu is won world championship in 2019. I became world number 1 in 2015. I got the world championship in 2000, silver medal in 2015. And then we have a couple of Asian championship medals. We are world number 1s. We are winning super series. So now the kids know that कौन क्या है. And we have to become like them. So they have that dream कि हमें भी बैडमिंटन प्लेयर बनना है. But I feel वो जो बच्चों का I feel कि उनको इनिशियली इक्विपमेंट का पैसा कैसे आएगा, देन कोचिंग का फीस भरना है, इट्स डिफिकल्ट. देन दे हैव टू, इवन इफ दे बिकम स्टेट लेवल चैंपियंस, नेशनल लेवल चैंपियंस, कुछ नहीं है सपोर्ट. यू हैव टू गो अपने पैसों से ही टूर्नामेंट्स.
और अगर आप जीते नहीं तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा ताकि आप फिर से अपने आप को फंड कर सके। एंड आई मेंशन्ड यू 17-18 टूर्नामेंट्स खेलने हैं, तो बच्चे को कंसिस्टेंटली इतना प्रूव करना होगा कि वो टॉप 25 तक आए अपने पैसों से। एंड 1 साल का खर्चा व्हाट आई हियर इज़ व्हाट फॉर द प्लेयर इज़ 35-36 lakhs फॉर प्लेइंग सो मेनी टूर्नामेंट्स। 17 36 lakhs. 17 टूर्नामेंट्स इन अ ईयर। आपका होटल, आपका खाना, आपका ट्रैवल, फ्लाइट टिकट्स, एंड देन इफ यू वांट अ कोच, इफ यू वांट अ फिजियो, देन इट्स नॉट गोइंग टू, यू आर नॉट, ऐसा नहीं है कि आप साइना नेहवाल, सिंधु, श्रीकांत ऐसे ही बन गए हैं या प्रणय। दिस इट्स नॉट एन ईजी, आप जो स्पोर्ट्स का फील्ड जो हमने चूज किया है, अभी जाके मुझे लगता है कि पापा से पूछना चाहती हूँ ना व्हाई, कि आपने जो पैसे लगाए हैं जो इनिशियली, लकीली बिकॉज आई वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वन फिलीपींस ओपन जो मैंने अच्छा कर लिया, तो मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करने लगी बिकॉज आई बीट वर्ल्ड नंबर 3। बट 15 साल के बच्चों में काफ़ी वर्ल्ड नंबर 3 को नहीं मार पाते हैं। दे बिकम नेशनल चैंपियन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर 19 तक वो नेशनल्स में ही अटक रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे खेलने के लिए फंडिंग नहीं है। एंड लकीली आई गॉट जॉब ऑल्सो व्हेन आई वाज 13, बट कितनों को जॉब भी मिलेगा ना 13-14 में। सो इट्स जस्ट लाइक कि कोई खेलना चाहता हो तो सिक्योरिटी नहीं है। आई फील कि मैं इसको अपनी पूरी जान से खेलूं। मुझे एज ए, बस मेरा एक ही सोच है कि मैं कैसे ओलंपिक मेडल लेके आऊं कंट्री के लिए। आफ्टर टॉप 10, टॉप 25, यस यू आर थिंकिंग अबाउट आपको करना ही है, बट टॉप 25 कैसे पहुंचे? टॉप 50, टॉप 100 प्लेयर इज सच अ बिग प्लेयर टू। आप टॉप 100 टेनिस में है तो हाउ मच डू यू अर्न? यू नो, इट्स अ बिग, I understand the game is marketed well, it's shown everywhere, it's such a big game, I know, but आप अगर बैडमिंटन खेलना चाहते हैं या आई थिंक अदर स्पोर्ट्स जैसे टेबल टेनिस हो गया, या आई थिंक स्विमिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, अदर स्पोर्ट्स इज नॉट सो इजी, यू नो, अपने आप को फंड करना है। गोल्फ हो गया, सो एक्सपेंसिव गेम्स, यू हैव टू फंड योरसेल्फ इनिशियली टू गेट इनटू टॉप 25। आई मीन कितने प्लेयर्स को मैंने देखा है जो अभी, बिकॉज कश्यप इज कोचिंग, माई हस्बैंड इज कोचिंग, एंड एक दो तो नेशनल चैंपियन बन के एक दो टूर्नामेंट अपना पैसा लगा के कुछ चैलेंजेस भी जीत गए हैं, टूर्नामेंट जो होते हैं, स्टार्टिंग के टूर्नामेंट जीत रहे हैं। लेकिन उन्होंने कश्यप से बात किया और बोला कि आई थिंक भैया और हम फंडिंग नहीं कर सकते हैं अपने आप को, बिकॉज ही इज कोच नाउ एंड आई वॉज ऑल्सो विद ऑर्गेनाइजेशन। तो हम उनसे बात करके, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट है, गो स्पोर्ट्स है, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हेल्प कर रही है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके कि इन बच्चों को हेल्प कीजिए ताकि वो कुछ टूर्नामेंट खेल सके, कि वो अपना वर्थ दिखा सके कि कितना लेवल पे खेल सकते हैं और कितने टूर्नामेंट्स वो जीत सकते हैं। तो आजकल सब चीज़ें इतनी टफ हो गई है ना कि अनलेस यू डोंट प्रूव एंड यू डोंट विन इट, द स्ट्रेस इज सो मच दैट कि मैं क्या करूं। अगर कभी कभी 1-2 साल रिजल्ट नहीं आते हैं, दैट्स फाइन, यू आर अ प्लेयर, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक एवरी टूर्नामेंट जीत सकते हो ना 17 टूर्नामेंट में। Not बट अगर possible. आपको एक्सपोजर मिलेगा, अगर आपको खेलने को मिलेगा, यू विल लर्न राइट whom यू आर प्लेइंग विद। अब टॉप 10 प्लेयर्स के साथ वो तो एक साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं चाइना में, दे आर ऑल इन टॉप 10। बट हमें कहाँ, हमें थोड़ी ना, लड़कियों को बॉयज़ के साथ खेलना पड़ता है ताकि हमें वो थोड़ी बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल सके। और बॉयज़ को मतलब अभी तक हमारे पास ऐसा ग्रुप नहीं है ना, जो ऑब्वियसली कश्यप, श्रीकांत एंड प्रणॉय वाज लाइक दैट, बट इस ग्रुप में वी डोंट हैव लाइक टॉप 10 प्लेयर्स प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। लक्ष्य इज ट्रेनिंग इन बैंगलोर, प्रियांशु इज हियर, सो वी एंड अलोंग विद हिम दे आर स्टिल नेशनल चैंपियंस, या थोड़े से जो बच्चे अब सीरीज लेवल पे खेल रहे हैं वो ही है अभी। तो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर देम आल्सो टू गेट गुड स्पारिंग राइट हियर। तो उनको टूर्नामेंट्स खेलना पड़ेगा सो दैट दे गेट मोर, मतलब सीखना पड़े या अच्छा खेलने का कैसा कैसा खेलना है, बेसिकली वो जानना ज़रूरी है। What can we do to change that? National level पे हो, state level पे हो, district level पे हो, क्या आई कर थिंक सकते हैं एवरीथिंग as a कम्स डाउन टू एसोसिएशन इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड। मतलब आफ्टर, अभी जब तक खेल रही थी मुझे इतना ध्यान नहीं था कि ऐसा होता है, बिकॉज़ मैं as I said, we were so busy with our training, with our tournaments, with जीतना है, हारना है, so much that we didn't even think about कि जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनका कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है कि वो छोड़ देते हैं। बिकॉज़ मेरे साथ इतनी सारी लड़कियाँ आई और चली गई, फिर आई फिर चली गई, बिकॉज़ आई गॉट टू नो कि अपना पैसा लगाना, फिर रोज़ इधर आके जाना, फिर उसके बाद रोज़ अपने कपड़े सब बैरल से सब खरीदना इज़ नॉट ईज़ी। नॉट एवरीवन गेट्स दी स्पॉन्सरशिप्स इन स्पोर्ट्स। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमें एसोसिएशंस को थोड़ा बहुत जो
स्कूल लेवल प्लेयर्स हैं या स्टेट लेवल प्लेयर्स हैं, नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं, एटलीस्ट ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैं इसको अपना अपना करियर बना सकूँ। आप क्यों ऐसे स्पोर्ट को करियर बनाएँगे जहाँ पे आपको ना अभी का पता, ना फंडिंग है, ना फ्यूचर में कुछ गेम खत्म होने के बाद ना कुछ आपका फ्यूचर है। आपको आपके पेरेंट्स जो अभी की जनरेशन है, वो बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। व्हाई विल दे वांट यू टू बी इन अ स्पोर्ट वेयर आपको अपना फ्यूचर नहीं दिखेगा? मैं उनके साथ ही हूँ। आई वांट बहुत स्मार्ट किड्स आर वेरी स्मार्ट नाउअडेज़, फ़ोन है उनके पास, दे नो व्हाट टू डू एंड जहाँ से भी उनको लगे कि उनका फ्यूचर सिक्योर होता है, वो वही करें। लेकिन आई थिंक एसोसिएशंस को थोड़ा और एक्टिव हो सकते हैं कि हाउ डू वी मेक द गेम लाइक दैट कि हमें और प्लेयर्स आए वहाँ पे कि उनको लगे कि ये स्पोर्ट में कुछ फ्यूचर है। वो कैसे होगा जब आप उसको गेम को और थोड़ा दिखाएँगे उस स्पोर्ट को और विजिबिलिटी के हिसाब से। विज़िबिलिटी रहेगी और उसको मतलब जैसे स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हो गए, स्टेट मतलब ऐसा खिलाते रहो बच्चों को, उनको इंट्रोड्यूस करवाओ इस गेम से। तो फॉर यंग किड्स आई वुड डेफिनिटली से उनके उनके साथ ही हूँ मैं कि वो जो चीज़ में उनको लगे कि उनका फ्यूचर सिक्योर्ड है, वही वो चीज़ करें। आई एम विद दोज़ पेरेंट्स ऑल्सो। बट मैं ये भी बोलती हूँ कि रिस्क लेके देखिए, क्योंकि अभी तक मुझे यही सॉल्यूशन पता है कि एसोसिएशंस कैन हेल्प और सॉल्यूशन मुझे पता नहीं है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव सो मच ऑफ टैलेंट, Yes. we have so many kids who want to do well and come up in sports, And as but you said, with only the thing right is training, funding, how to support. market this। मतलब मार्केटिंग भी एक चीज़ होती है ना, कैसे गेम को इतना बड़ा बनाया जाए हमारे कंट्री में कि बच्चे देखें और उसको सीखें और उनको खेलना चाहें। ऐसा ना हो कि स्पोर्ट में क्या है, कुछ नहीं हो सकता है। नो इट्स टफ, दैट्स द रियलिटी, यू नो हाउ हमारे खुद के फैमिली में टिल आई स्टार्टेड विनिंग ना, मैं मतलब 18 तक तो ओलंपिक्स खेल ली थी मैं, बट उस टाइम पे भी मुझे कब कुछ अपने लोग भी बोलते थे चाइना को कैसे हराएँगे, इट्स वेरी टफ एंड दैट्स द रियलिटी, यही होता है बातें। चाइना को कैसे हराएँगे, इंडोनेशिया को कैसे हराएँगे। अब थोड़ा-सा क्योंकि बिकॉज़ वी आर बीटिंग रेगुलरली सो इट्स लाइक मार सकते हैं, हरा सकते हैं। यू नो वी कैन बीट possible देम, है। पॉसिबल है। Yeah. बट ऐसा ना हो कि हमारा फ्यूचर कहीं न कहीं इस चीज़ों के लिए रुक जाए बिकॉज़ आफ्टर सिंधु देयर इज़ लॉट ऑफ गैप, राइट? वुमेन Yeah. सिंगल्स में वी डोंट हैव, देयर इज़ ओनली वन, मेन में लक्ष्य है। देयर इज़ नो बंच ऑफ प्लेयर्स वेयर नाम भी मुश्किल हो जा रहा है बोलना मुझे क्योंकि प्रीवियस बैच में वी हैड 5-10 ऑफ देम whom आई कैन से कि दे एक्चुअली प्लेड इन सुपर सीरीज़, यू नो 5-6 प्लेयर्स यूज्ड टू प्ले। अभी 1 ही 2 प्लेयर खेल रहे हैं। यू नो इट्स सो टफ कि हमारे ऐसा ना हो कि बैडमिंटन जो अभी इतना पॉपुलर हो चुका है कि फ्यूचर में हमारे पास Players ना प्लेयर्स ना हो। सो आई Olympics जस्ट फील भेजने के लिए। बैड फॉर दोज प्लेयर्स क्योंकि वो पूछते भी है ना, दीदी कहाँ से खेले, हम खेलना चाहते हैं। आप ही तो बोल रहे हैं अभी कि इतनी सारी लड़के लड़कियां आपको रोल मॉडल मानते हैं, खेलना चाहते हैं, बट आई डोंट वांट टू। उनको मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप आइए क्योंकि इट्स नॉट ईजी। आप आइए तो ये रेडी रहिए कि रिस्क है गेम में, यू नो देयर इज Yeah. नथिंग परमानेंट। आपको इंजरी होगा तो बहुत मतलब टफ टाइम भी होगा। अगर एवरीथिंग इज गोइंग फाइन देन यू विल गेट द बेस्ट ऑल्सो फॉर श्योर, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप टॉप 25 में जब आएंगे तभी वो सब पॉसिबल है। ग्रास रूट लेवल पे इतना सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर दी Realities. few realities which I feel what I have noticed after you know maybe पहले क्योंकि just because I started performing so well fast तो सब चीज़ें थोड़ी जल्दी मिलने लगी। बट ये 100 में से 2 प्लेयर ही होंगे ऐसे जो जिनको ऐसा होगा, बट 100 प्लेयर्स को आई वांट ऑल ऑफ देम टू प्ले क्योंकि चाइना में व्हाट आई हैव हर्ड इज इतने सारे स्टेडियम्स हैं, 30-40 हज़ार बच्चे खेलते हैं एंड उनमें से सभी जीत जाते हैं ऑलमोस्ट। एवरीवन whom I know is either ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन। Yeah. उनका कमी नहीं है। अभी फिर से आई थिंक 100 मेडल तक लेके गए हैं वो। Yeah. अगर आप ये वापस करते, if you had to restart your career, आप कोई बैकअप प्लान रखते? अब आई डोंट नो, मे बी नॉट श्योर। अब आई थिंक आई नो एवरीथिंग ना, कि अभी ट्रेनर है, फिजियो है, कोच है। बिकॉज व्हाट कोच कश्यप गॉट टू नो कि हर एक प्लेयर पूछता है भैया मुझे कोच के साथ फिजियो ट्रेनर भी चाहिए, मुझे डाइटिशियन भी चाहिए और मुझे मेंटल ट्रेनर भी चाहिए। तो these are the questions at the age of what 12-13 Wow. So they're very well informed. they should know also, Yeah. क्योंकि ये सब चाहिए एट द यंग एज चाहिए, तभी तो आपको रिजल्ट्स 15-16 में आएंगे। मुझे 15-16 में आए ओनली बिकॉज ऑफ माई मॉम, बट सब ऐसे नहीं हो सकता है। दिस इज जस्ट आई वुड से लकी, आई वॉज लकी। नॉट मेनी विल गेट इट एट द एज ऑफ 15-16, सो दे विल हैव टू, मतलब 18-19 भी हो सकता है, इट्स ओके, 20 भी हो सकता है,
बट यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग एट द एज ऑफ 6 and 7. स्टार्ट करना है तो 6 and 7 प्रोफेशनल स्पोर्ट, नहीं तो इट्स टू लेट, इट्स लेट टू एंटर इनटू द स्पोर्ट. एंड वंस यू एंटर देन यू हैव टू नो. अभी जैसे मुझे मालूम पड़ा है इन चीज़ों के बारे में, आई थिंक आई वुड हैव थॉट मे बी 100 टाइम्स कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है व्हेन यू विन टूर्नामेंट और रनर अप, अदरवाइज इज नॉट मच यू गेटिंग. चाइना वाले 14 में भी खेल लेते हैं ओलंपिक्स, तो जिसका जितना जल्दी रिजल्ट आए दैट्स गुड राइट. 15 साल की उम्र में चाइना वाली लड़की जो वैंग यिहेन है, जो मेरी वन ऑफ दी बहुत टफेस्ट अपोनेंट रही हैं वो मेरे काफ़ी बार हराया उन्होंने मुझे. वो 15 साल की उम्र में शी वाज बीटिंग सीनियर वर्ल्ड चैंपियन जो उनके उस टाइम के थे. एंड 16 में शी वन द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप बीटिंग मी इन कोरिया. I won World Junior Championship in 2008 in Pune, but she beat me in 6, and she was already winning in the seniors. She was already world number 2 or 3 by the time she was 16, 17. तो मैं सोचती हूँ कि अगर इतना परफॉर्मेंस चाहिए तो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए हमें कि बच्चे को कुछ सोचना ना हो. लाइक बेसिकली यू आर नॉट थिंकिंग, हाँ यू आर नॉट थिंकिंग. एंड ऐसी एक ही अकेडमी है, अभी गोपी सर की अकेडमी है जो हैदराबाद में, प्रकाश सर की अकेडमी है जो बैंगलोर में, एंड कुछ एकेडमीज होंगे और भी हैं. मुझे लगता है कि और ऐसे एकेडमीज हैं, आई थिंक देयर लॉट ऑफ एकेडमीज, देयर लॉट ऑफ स्टेडियम्स, कोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और भी हो सकते हैं. बट आई जस्ट फील जो कोचेज़ हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो हमें और बेस्ट चाहिए, सो दैट वो हमारे हर एक सिटी को कवर कर सकें जो बच्चे वहाँ पे भी खेलना चाहते हो. फॉर एग्जांपल मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, केरला, कोलकाता, या कहीं भी खेलना चाहते हो. ऐसा ना हो कि वहाँ पे उनको लगे कि हमारे पास ना अच्छे कोचेज़ नहीं हैं, अच्छे ट्रेनर्स नहीं हैं, बट टैलेंट है. आसाम टैलेंट है. आई थिंक गोपी सर इज़ मेकिंग वन अकेडमी इन मे बी आसाम या उड़ीसा में कहीं बना भी रहे हैं, बट वो फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं हो पाएंगे ना वहाँ पे, तो ही विल हैव टू डू लॉट ऑफ अप एंड डाउन. बट अगर हमारे पास ऐसे बेस्ट कोचेज़ आ जाएँ हर एक जगह पे, कि वो जो बच्चे जो ज़ीरो लेवल पे स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आई कैन सी कि अगर आपके पास जैसे कोई इंडोनेशिया का फॉर एग्जांपल वर्ल्ड चैंपियन हो, या चाइना का कोई ओलंपिक चैंपियन हो, जिसको आप इधर लेके आके कोचिंग करवा रहे हैं, वो डेफिनेटली चैंपियंस प्रोड्यूस करेगा. इट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज ही नोज हाउ टू प्रोड्यूस चैंपियंस. तो आई फील जहाँ पे आप इंडियन प्लेयर्स भी, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स टॉप 10 टॉप 20 में हैं, आप उनको भी इंक्लूड कीजिए इन चीज़ों में. बट ओनली थिंग व्हाट आई फील इज लिटिल सैड, जब मैं सिस्टम में हूँ, मेरे को दिख रहा है जो है कि वंस यू आर फॉरेन कोच, यू गेट पेड लाइक 8 to 10 lakhs पर मंथ, एंड देन आपको ट्रेनर चाहिए, अच्छे ट्रेनर, अच्छे फिजियोस, आप दे आर ऑल्सो गेटिंग पेड लाइक 4 to 5 lakhs पर मंथ. The international ones. नो, आई थिंक लोकल वंस ऑल्सो आर वेरी गुड नाउ डेज. सो उनको भी, या इंटरनेशनल वंस को बुलाना है तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव. इट्स नॉट आपने It's not कोच cheap. बना के छोड़ दिया एंड ऐसे ही कोई कोच है वहाँ पे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. एक कोच होना चाहिए जो वो लेवल पे खेला हुआ है, और उसका ही जो होती है ना, जो फीडबैक जो वो बताता है, तभी आप लर्न करते हैं. और इंडियन कोचेस का सैलरी इतना कम है कि एंड टाइम लगाना पड़ता है 10 से 12 घंटे. लाइक सपोज इंडियन कोच का सैलरी व्हाट आई हर्ड इज 1.5 तक है लैक्स एंड पर मंथ, एंड फॉरेन कोच का सैलरी इज अराउंड 9 to 10 lakhs. इतना इतना discrepancy. डिफरेंस, ऑफ कोर्स आप जो बोल रहे हैं, बट that's how it is. And all the Indian players are in top 10 and top 20 जो प्रीवियस वाले हैं, उनके they have played many super series, they have the idea, but it's just that कि आपको अगर आपकी भी फैमिली है राइट, आपके भी पेरेंट्स हैं, आपकी भी वाइफ हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल आल्सो थिंक अबाउट देम. तो इंडियन कोचेस को कैसे वो थोड़ा वो आएगा मोटिवेशन के, आई हैव टू यू नो प्रूव एंड गेट किड्स टू दैट लेवल कि वो बेस्ट बन सके. थोड़ा उनको भी आई थिंक दे हैव टू बी लिटिल बिट हैप्पी राइट व्हेन इन देयर सच डिफिकल्ट फील्ड के उनको प्लेयर्स बनाने हैं. प्लेयर्स बनाना इज नॉट इजी जॉब. खेलना इज वेरी इजी. कोचिंग इज सो डिफिकल्ट. Why do you say that? And have you considered being a coach? I am saying कि because I've trained under so many coaches, the amount of energy they are putting, मेरा काम है 2-3 घंटे सुबह खेल के जाओ, फिर 3-4 घंटे सुबह शाम में जाओ करके जाओ, जो मेरा काम है. Coach is there from morning till evening, training not only my batch but other batches, then other batches. Then it's 12 hours of thinking about the players, not अपने बारे में तो सोचने का टाइम ही नहीं है ना आपके पास एज ए कोच. यू आर थिंकिंग अबाउट इस प्लेयर के साथ क्या करना है. और नाउ इट्स बिकम इवन मोर गुड दैट
पहले तो बैच में करवाते थे, अब तो हर एक प्लेयर का डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। ये प्लेयर Personal ऐसा है, one-on-one. हाँ, हाँ. ये प्लेयर ऐसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़े शॉर्ट हाइटेड हूँ, मेरे मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? साइना के स्मैश अच्छे हैं बट उसका ड्रॉप इम्प्रूव करवाना है, तो दिस इज़ साइना। Wow. नाउ सिंधु इज़ टॉल, शी इज़ गुड विद रैलीज़, शी हैज़ गुड स्टैमिना, तो उसका ये इम्प्रूव करवाना है। सो एवरी प्लेयर विल नीड स्पेशल प्रोग्राम। अभी ऐसा It's हो like गया a है। diet plan. It's like a personalized diet That's plan what for that's each. that you get to know with the timing, right? I didn't know this in 2008 when I was playing the Olympics. I thought सब प्लेयर साथ में ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा ही होता है। जैसे चाइना का मॉडल आ जाए या इंडोनेशिया का मॉडल आ जाए, किसी भी स्पोर्ट से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी स्पोर्ट को। ऑल आर वेरी वेरी टफ स्पोर्ट्स, ऑल आर वेरी वेरी, मतलब आप ज़ीरो लेवल से एक चैंपियन बनते हैं, उसका हार्ड वर्क, उसका जो एक डिफ़िकल्ट चैलेंजेस होते हैं, वो आई नो बिकॉज़ आई हैव फेस्ड दैट एंड बिकेम अ चैंपियन एंड बिकेम समथिंग इन द स्पोर्ट, एंड दैट इज़ हैपनिंग इन एवरी स्पोर्ट। बट कितने लोग गेम छोड़ भी देते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, एंड दैट्स द रियलिटी। अभी हर एक काफ़ी हद तक आप जैसे जैसे नीरज चोपड़ा के लिए देख लीजिए, 2018 एशियन गेम्स गोल्ड, फिर 2020 ओलंपिक गोल्ड, 2024 सिल्वर मेडल। अब नेक्स्ट ओलंपिक्स, आर वी लुकिंग एट नीरज चोपड़ा और आर वी लुकिंग एट मेनी अदर नीरज चोपड़ाज़? वो तो प्रूव कर देंगे, ही विल कम बैक विद अनदर मे बी गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज। ही इज केपेबल, ही इज डूइंग वेल, ही इज विनिंग एवरी टाइटल। बट अभी तक मुझे लगता है इतने सालों में और लोगों ने नहीं खेलना शुरू किया है, या और लोगों ने ट्राई नहीं किया है जैवलिन थ्रो में आने के लिए। व्हाई इज इट लाइक दैट? मतलब ये मैं खुद ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ लोगों से। अगर आप मुझसे पूछे जाएंगे, मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यही बोलूँगी कि आई वुड लव टू सी इंडिया गेटिंग, मतलब अभी 6-7 आ रहे हैं तो व्हाई नॉट? वी कैन गेट इट, वी कैन डेफिनेटली गेट इट। वी ऑल आर हार्ड वर्किंग, वी ऑल वांट टू अचीव इन स्पोर्ट्स, एवरीवन लव्स टू वॉच स्पोर्ट्स। किसको पसंद नहीं है स्पोर्ट्स? मैं खुद बैठ के मुझे मज़ा आता है स्पोर्ट्स देखने के लिए। What do you watch? I love watching tennis. Yeah. I love watching, swimming. I love it. Hockey. Oh my God. You like watching hockey? I as love well? it. I Yeah. love it. मुझे मज़ा आता है इनको देखने के लिए। एंड किसको मज़ा नहीं आता है? एवरीवन, जब ओलंपिक्स होता है तो एवरीवन कम्स टुगेदर। इतना मज़ा आता है ना, द होल कंट्री इज वॉचिंग। बट यही मज़ा एवरी टूर्नामेंट में आना चाहिए, जहाँ पे भी वो प्लेयर खेल रहा हो। And I think that was your comment कि वो cricket का जो comment था, I think it was exactly that. It was not comparing the sport. You just meant कि जो stability और जो security है and the visibility. देखो अभी I मैंने think you पूरा wanted एक्सप्लेन that. किया है। हाँ. फैसिलिटी मतलब हर एक जगह पे ऐसी एकेडमी हो जहाँ पे बेस्ट कोचेज हों, बेस्ट ट्रेनर्स हो, बेस्ट फिजियोज हो, ताकि प्लेयर को कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैं आई हैव अचीव्ड सो मच, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग प्लेयर्स। तो मैं अपने लिए तो कुछ बोल नहीं रही हूँ, ना मुझे किसी स्पोर्ट से कुछ ऐसा लड़ना है। दिस इज ऑल, मुझे बस ये चाहिए कि दूसरे स्पोर्ट्स भी ग्रो करें, अच्छा करें। Are you a girl's girl? Do you like dressing up? Do you like doing makeup? फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल नहीं। मतलब इतना नफरत है ना मुझे ये ड्रेसअप होने से, बिकॉज बचपन से वी हैव बीन इन शॉर्ट्स एंड शर्ट्स, जैसे आप लोगों ने देखा भी है कि हम हमेशा फील्ड पे रहते हैं ऑल दैट। लेकिन जैसे ही बाहर जाती हूँ ना मैं, तो एक दो स्टाइलिस्ट ने मुझे बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम, एटलीस्ट कैरी योरसेल्फ प्रॉपर्ली, थोड़ा अच्छा पहन लो कपड़े, है ना, जस्ट फॉर अस। दे आर एक्चुअली रिक्वेस्टिंग मी। मैंने कहा यार इतना टाइम बैठना पड़ता है मेकअप के लिए, उसके लिए सो टफ। बट दे लाइक नहीं, अच्छा दिखना चाहिए ना जब आप जा रहे हैं, पब्लिक की नज़र में हैं आप, तो प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है आप लोगों के लिए मैं कर लेती हूँ, बट इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब टू गेट रेडी, टू वेयर गुड क्लोथ्स जो आपको सूट भी हो और आप कंफर्टेबल भी रहें। तो हैट्स ऑफ टू देम टू एक्चुअली मेक यू लुक जो भी आप अच्छे दिख रहे हैं, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। Yeah, but you're a tomboy at heart. आई एम Definitely. आई वांट टू बी लाइक दैट, बिकॉज बचपन से ऐसा ही है मेरा एटीट्यूड, आई लव टू प्ले स्पोर्ट्स। आई एम समवन हु इज इनटू स्पोर्ट्स फॉर सो लॉन्ग। आप सडनली मुझे बोलेंगे कि आप ऐसा कुछ करिए जो बिल्कुल ही अलग है, वो नहीं हो पाएगा मुझसे। आर्टिफिशियल नहीं हो पाती हूँ मैं। आई लाइक टू बी माई सेल्फ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं, जो मेरे अंदर नॉलेज है जिस चीज़ का है, उसके बारे में मैं बता सकती हूँ आपको। जो मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं उसके बारे में क्या बात करूँ। और आई थिंक दैट्स व्हाई जो फ्रेंडशिप्स थोड़े कम ही बनते हैं, क्योंकि हम उतना बाहर जाते नहीं हैं, टाइम मिलता नहीं है। तो जो भी फ्रेंड्स बन पाते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स से बन पाते हैं, या आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं। So more girlfriends or more guy friends? मोर गाय फ्रेंड्स ओनली। More guy friends गर्ल for sure. फ्रेंड्स तो बाद में, अभी लास्ट 2 इयर्स में थोड़े 2-3 बनाए हैं मैंने, क्योंकि
उतना थोड़ा बहुत टाइम मिला है मुझे। Yeah. वरना गर्लफ्रेंड्स बचपन से मे बी जस्ट बिकॉज़ हमारे स्पोर्ट में उतनी लड़कियाँ खेल नहीं रही थी। अब जाके लड़कियाँ खेलना शुरू करा है। उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया 2-3 लड़कियाँ थी एंड अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल में दे लेफ्ट बिकॉज़ दे वांटेड टू बी इंजीनियर्स और समथिंग बिकॉज़ इस गेम में कुछ उनको दिखा नहीं था। एंड लकीली आई कंटिन्यूड एंड आई कुड अचीव समथिंग इन द स्पोर्ट। तो मुझे लगा कि वो मिस हो गया पार्ट कहीं। और जब आपको फ्रेंड्स बनने का टाइम होता है ना 10 टू मे बी 18 इयर्स, वो टाइम आई वाज़ नेवर लाइक एट होम आल्सो, आई वाज़ ओनली ट्रैवलिंग टूर्नामेंट्स, प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स, ट्रैवलिंग। फिर आप जब इतना मेहनत करके आके घर पे बैठते हैं तो फिर नींद आ जाती है खाना खा के, सो देयर इज़ नो टाइम टू एक्चुअली इतना कुछ कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं रहता किसी से। The biopic, the movie that's made on your life, वो process कैसा था आपके लिए to watch yourself, not yourself, but Yeah. to watch your story unfold on that screen? And Emotional hats था off to कि Amol Gupte for making such beautiful movie. Badminton is not easy to show on screen. It's a very technical, movement type of a game जहाँ पे आपको movements दिखाने हैं, shots दिखाने हैं. And I think he did a fantastic job by showing the badminton as well. And Pariniti, initially I think Shraddha was supposed to do, but उन्होंने पूरा काफ़ी हद तक वो काम कर भी लिया था. And then I think कुछ issue हो गया था, maybe she was not feeling well, तो और शूटिंग स्टार्ट करनी थी। एंड आई थिंक सडनली परिणीति आई उसमें एंड विद इन नो टाइम शी वाज रेडी टू प्ले द रोल। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी कि उन्होंने इतनी जल्दी बैडमिंटन भी सीख लिया, इतना जल्दी उन्होंने मतलब इतना उन्होंने जो बॉडी भी बनाई बिल्कुल एक एथलीट जैसी बनाई। आई एम हैट्स ऑफ टू हर हार्ड वर्क दैट विद इन 1-2 मंथ्स ओनली शी एक्चुअली, जो मूवी को 2-3 साल लग गए थे, शी डिड इट इन 2-3 मंथ्स। Wow. And then when she was playing on screen, I was like, wow, she's so good. Because to play badminton or tennis, जहाँ पे आपको एक हाथ में रैकेट है, to show that also correctly, कि आप रैकेट ठीक से The पकड़ रहे हैं, movement. मूवमेंट ठीक से कर रहे हैं, and everything was done so beautifully. And then मम्मी का रोल जो पापा का रोल किया गया है, it was so emotional, everything was shown so beautifully. And बैडमिंटन ऑन स्क्रीन पे आया साइना मूवी के साथ। आई मीन बच्चों को ऐसे ही तो देखने को मिलेगा कि बैडमिंटन भी एक गेम है जिसके ऊपर एक बायोपिक बनी है। वो मेरी मूवीज़ से थोड़ा बहुत सीखेंगे, बैडमिंटन में आना चाहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे जो देश में बॉलीवुड है ही ना इतना बड़ा कि हम दिखा सकते हैं, तो बच्चे भी उसको देख के सीख सकते हैं। और ऐसे ही हमें और भी टूर्नामेंट्स भी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ताकि बच्चों को लगे कि हम कुछ ऐसे प्लेयर बन सकते हैं फ्यूचर में। सो आई थिंक इन अ वे दैट मूवी लॉट ऑफ यंग किड्स कम अप टू मी एंड से हमने आपकी मूवी देखी, हम भी बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हैं। तो इट्स सो स्वीट ऑफ देम, दे आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम द मूवी एंड दे फील के हार्ड वर्क करके हम भी अपने कंट्री के लिए मेडल्स जीतेंगे। व्हाट्स मोर स्पेशल देन दैट। Yeah. So it's a It's beautiful beautiful. experience It's beautiful. watching your story, Lovely, screenplay, lovely. emotional, Yeah. pura, and it was depicted very I feel beautifully. I am blessed to have a movie on me. Yeah. It's very nice to see. Yeah. कभी आपको ऐसा लगा कि लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए या लड़कियों को उतना पुश नहीं था, और देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ जेंडर डिवाइड कि मेंस स्पोर्ट था या वुमेन स्पोर्ट था? ऐसा कभी लगा कि आपको बिकॉज़ यू आर अ वुमन आपको रोका गया कहीं पे? नहीं, आई थिंक इन माय करियर तो आई हैव नेवर फेस्ड दैट। एंड आई थिंक मेरे करियर में बैडमिंटन में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई हूँ। देन आई थिंक बट ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा कभी किसी से महसूस भी नहीं हुआ। ऑल्दो आई कम फ्रॉम हरियाणा, मैं स्टोरी सुनती हूँ, बट ऐसी बात नहीं है। आजकल देखिए कितने सारे रेसलर्स हैं, कितनी सारी लड़कियाँ हैं, कितनी सारी लड़कियाँ मेडल लेके आती हैं, और कितने सारे बॉक्सर्स हैं, सब आ रहे हैं वहाँ से। और जो अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता स्पोर्ट्स में आने के लिए, एक लड़की को, तो मतलब ऐसा कुछ मेरे तो करियर में आई हैव नॉट फेस्ड दैट काइंड ऑफ एन Yeah. इश्यू। Would you like to say anything to families that don't support मैं women कर to सकती go हूँ तो into सब लड़कियाँ sports? कर सकती हैं। हम लड़कों से कम थोड़ी ना है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि हमें उनसे कम्पीट करना है। हमारा फील्ड अलग है, वुमेन सिंगल्स कैटेगरी है, मेन सिंगल्स कैटेगरी है। बट हमें थोड़ा ना उनसे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कुछ है, बट हमें उनसे सीखना चाहिए कि जैसे वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमें भी उतना हार्ड वर्क करना चाहिए। वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग, फाइटर्स बनना चाहिए हमें। दे आर एनीवे स्ट्रांग, मेन्स आर स्ट्रांग ऑब्वियसली, बट हम कम नहीं हैं। वी आर गुड इन एवरी फील्ड नाउ, वी आर एवरीवेयर नाउ। जस्ट दैट हमें थोड़ा-सा वो हिम्मत चाहिए कि हम कम नहीं हैं। आई नो हमारे बहुत डिफिकल्ट डेज़ भी होते हैं, वी आर फाइनली women, I know, we understand, but it's if you want to become something in your life, कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन बना मैंने, तो इट्स ओके, डिफिकल्ट डेज हो या कुछ भी हो या फीवर हो या कुछ भी हो,
That's okay, it's part of life, but I have to work hard to be the best. That's the only thing you have to think. You have to not think about कि उसको ज़्यादा मिल रहा है या मुझको कम मिल रहा है। जब मुझे ऐसी फील्ड में जहाँ पे मेन और वुमेन को इक्वल मिलता है, वहाँ पे मैंने अचीव किया कि आई एम बेटर नाउ एंड नाउ सिंधु इज़ कमिंग अप। लड़कों को इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला एक्चुअली जितने लड़कियों को मिला है। तो इट्स पॉसिबल एवरीवेयर। आपके काम से आपको जाना जाए इज़ व्हाट आई फील। No, that's very good, no? You're Saina Nehwal, you've done something good for the country. That's all. बाकी आई थिंक कंपेयर करना बहुत इट्स नॉट राइट। हम अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वी हैव इक्वल स्ट्रेंथ, वी कैन डू एनीथिंग पॉसिबल एंड व्हेन आई कैन डू इट, ऑल द गर्ल्स कैन डू इट। थोड़ा-सा मतलब आई थिंक लड़कियों को ऐसा जस्ट फील होना चाहिए कि हम भी टॉम बॉयज़ टाइप हैं, हम भी कर सकते हैं बस। थोड़ा-सा आई नो वो लगता है हाँ, लड़कियाँ हैं कैसे खेल पाएँगे स्पोर्ट्स ये वो। बस ये माइंड की बात होती है, चेंज योर माइंड, थिंक लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, जस्ट अ स्पोर्ट्स पर्सन या थिंक लाइक आई एम द बेस्ट, चाहे किसी भी फील्ड में हो, we can do wonders, yeah. I do want to address controversies because Yeah. sometimes you've said something and it's been taken in the wrong way, yeah. even if you've not meant it. Would you like to address the recent controversies, backlash? I don't like controversies at all. मैं कभी थी भी नहीं, मेरे पास कभी इतना टाइम भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि कंट्रोवर्सी बन जाए। लेकिन आज अभी का मुझे लगता है कि जो लोग सोचते हैं ना बिना कुछ पूरा चीज़ देख के सोचते हैं। Comment था वो कंगना Instagram रनौत is of not everything. sports. That's what I'm saying. Instagram is not everything. I'm saying something on a interview. I think we should all see the whole interview and understand why I'm saying that. It's not कि मुझे किसी स्पोर्ट से कंपटीशन है, मुझे उस स्पोर्ट से कंपटीशन हो के मैं करूँगी क्या उससे? मुझे कुछ करना नहीं, ना मुझे उनके साथ खेलना है, ना उनको मेरे साथ खेलना है। तो how do we together make the sports grow in India is what we have to look at. And Kangana Ranaut of sports is Yeah, what that was the comment. Kangana Ranaut of sports. Did you? How first did you of take all, that? I was not thinking why they put that word in. वो वर्ड क्यों आया? मतलब कंगना रनौत क्यों आए हैं वहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो बीजेपी के एमपी हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं और एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम उनसे जोड़ा क्यों गया इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। देन आई थॉट कि आई थिंक कुछ ऐसा चीज़ हुआ होगा, मे बी लोगों को लगा होगा कि वो गलत है। बट एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई थिंक मुझे लगता है वो विनेश के बारे में हुआ है, विनेश फोगाट जी के बारे में। मुझे लगता है जब मैं उनके साथ इतने टूर्नामेंट्स में गई हुई हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो लोग बोल भी रहे हैं उनको पता भी नहीं है। 2018 से या 14 के एशियन गेम्स से आई नो हर। एवरी एशियन गेम्स, एवरी ओलंपिक्स आई एम विद ऑल द फोगाट सिस्टर्स एंड आई हरियाणा से हैं, आई एम आल्सो फ्रॉम हरियाणा। तो मुझे उनसे मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना। मैं सोच रही हूँ बिकॉज़ अभी उनका 3rd ओलंपिक्स है एंड जब भी हम पहले मिले एंड शी इज़ लाइक हमेशा मेडल मिस हो गया बिकॉज़ ऑफ इंजरीज़ और थोड़ा बहुत कुछ प्रिपरेशन से ऐसा मिस हो जाता है मेडल एंड इट्स वंस इन 4 इयर्स एवरीवन वांट्स टू गेट द मेडल फॉर द कंट्री। एवरी प्लेयर ड्रीम्स ऑफ एन ओलंपिक मेडल एंड शी वाज समवन लाइक दैट टेलिंग मी कि मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है एंड शी इज़ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। वो अच्छा खेली बहुत, कॉमनवेल्थ गेम्स भी जीता उन्होंने। मैं सोच रही थी ओलंपिक्स मिस हो रहा है उनसे, अब इस बार तो पक्का जीत के लाएँगी। अब मुझे पता नहीं स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कैसे आ रहा है। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड आई हैव टू बिकॉज़ आई सेड जैसे मैंने 2008 ओलंपिक्स में आई लॉस्ट माय क्वार्टर फाइनल्स मैच। आई लॉस्ट एंड आई केम आउट ऑफ द कोर्ट। कितना टाइम हुआ होगा? 15-20 मिनट। इमीडिएटली मीडिया वाले पूछते हैं आपको कैसे फील हुआ है हारने के बाद? इज़ दैट अ क्वेश्चन टू आस्क? इफ आई वांट टू हाउ कैन आई इवन एक्सप्रेस? इट्स सो डिफिकल्ट। अब जब मीडिया ये पूछे तो it's very harsh to ask immediately after losing a match. When I go back immediately to the practice court, coach is also saying, how did you lose it? Once in 4 years. Some players don't even get a chance to play next time. Some players only get once and one take. And I'm like, sir, I'm really. Then he's saying, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ट्रेनिंग किया, अगर आपको बोला नहीं जाएगा तो how will you feel it? एंड देन आई एम लाइक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हुआ क्या अभी तक एंड मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है। कोर्ट के बाहर आके कोच ने बोला है, फिर उधर मीडिया वाले पूछ रहे हैं मुझसे। सो व्हेन समवन आस्क्ड मी, मुझे फ़ोन करके कि विनेश के साथ ऐसा हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन शॉक। मैं ही उनके बारे में इंस्टा पे लिख रही हूँ, गो विनेश गेट द मेडल, एंड आप गोल्ड मेडल के पास हैं। आई एम नॉट इवन थिंकिंग सिल्वर फॉर हर बिकॉज द वे शी वाज प्लेइंग गोल्ड मेडल ही था उनका पक्का। एंड नेक्स्ट डे न्यूज़ आया 100 ग्राम्स अप है, Disqualified.
एंड मुझे ये समझ नहीं आया क्योंकि आप इतने साल से खेल रहे हैं, इट्स नॉट दैट आप पहली बार खेल रहे हैं ना, आप बचपन से आपने प्रैक्टिस करी है तभी तो ओलंपिक्स में आए हैं आप। आप जब अमन शरावत जी ने मेडल जीता है इस बार, ही लॉस्ट 4.6 किलोज इन वन डे, मैं खुद ही शॉक्ड हूँ। एंड देन आई एम थिंकिंग कि 100 ग्राम्स से आप मैच नहीं खेल पाए हैं। एंड ओलंपिक्स इज लाइक दे हैव देयर रूल्स, दे हैव देयर रेगुलेशंस, इट्स नॉट लाइक आप कुछ पॉलिटिक्स कर सकते हो उसमें। आई डोंट नो, यू नो, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे नहीं पता इन सब के बारे में, लेकिन मुझे थोड़ा सिली लगा कि वो सोच रहे हैं कि शायद कुछ पॉलिटिक्स से हुआ होगा। बट आई जस्ट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई फील वेरी वेरी सैड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको एक मेडल आपसे मिस हो गया है। एंड अभी तो क्योंकि आप मुझे अभी 2008 के बारे में इतना बुरा फील होता है ना, व्हेन आई सिट बैक एंड अब अभी भी थिंक सोचते हो अबाउट, उसके बारे में, हाँ, लॉस के बारे में? ऑल्दो आई हैव एन ओलंपिक मेडल बट आई फील बैड कि 8 में भी मिस हो गया मुझसे। गोल्ड, ऑलमोस्ट गोल्ड। आप सोचिए, गोल्ड नहीं, मतलब मेडल मिस हो गया है। गोल्ड तो 2016 था जब मैं खेल भी नहीं पाई, तो इंजरी से काफ़ी प्लेयर खेल भी नहीं पाते हैं। एंड शी वाज़ देयर फुल्ली फिट, स्ट्रॉन्ग, एंड सडनली आपने ये न्यूज़ सुना एंड आई एम लाइक कुछ वर्ड्स ही नहीं हैं, क्योंकि एज़ अ प्लेयर आपको अलर्ट रहना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। एट दैट लेवल ना, आप जब कंट्री के लिए, मेडल के लिए खेल रहे हैं तो आप मतलब आप, मुझे लगा 100 ग्राम्स इज़ टू मच, आई थिंक 10-15 ग्राम्स भी नहीं बढ़ सकता है आपका। हाउ डिड दिस हैपन विद हैविंग ऑल द कोचेस, फिजियोस, डायटीशियंस, मेंटल ट्रेनर्स, इतने सारे लोगों के बीच में होके भी ऐसा कैसे हो गया? आई वाज़ वेरी सरप्राइज्ड। So that's what you were trying to express, आई just वाज़ ट्राइंग टू concern, से just एज़ अ shock. स्पोर्ट्स पर्सन कि ऐसे कैसे हो सकता है? Just that, still I'm not able to believe it, because we were waiting for her bout in just like maybe evening में मैच था उनका, सुबह ऐसा न्यूज़ आया, and every day morning they check the weight is what I have seen them personally when we were in the Olympic village. They all run with the heavy jacket to lose weight. होता है उनका, करते हैं वो लोग, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, यू नो, जस्ट दैट आप इतना बड़ा मेडल मिस करके आ गए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों से प्यार मिलेगा, दैट्स फाइन, यू नो, इवन आई एम विद हर, बुरा फील होता है, बट मुझे मुझे तो लगेगा वो उनको रोना कितना आया होगा व्हेन ऐसी मिस्टेक हुई हुई जो होनी नहीं चाहिए इन दैट लेवल। अभी बिकॉज़ एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे मिस्टेक मैंने देखा नहीं है, काफ़ी लोगों से हो जाते हैं आई थिंक, बट आप थर्ड टाइम खेल रहे हो एंड यू आर सीरियस गोइंग फॉर द फाइनल्स, एंड आई मीन मेडल इज़ व्हाट एवरीवन ड्रीम्स ऑफ। तो थोड़ा नहीं, एज़ ए को एथलीट थोड़ा ज़्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि आप वो मिस कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ आपको पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स घुसाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंगना या यहाँ पे ये क्या करेंगे? वो अपने बिज़ी हैं अपने फ़ील्ड में। वो आप सडनली सब कुछ मिक्स करके एक साथ पॉलिटिक्स बना देंगे तो दिस इज़ नॉट राइट। जस्ट थिंक इट एज़ अ स्पोर्ट्स। ओलंपिक्स इज़ अ स्पोर्ट्स दिस थिंग। आप उधर जा रहे हैं अपना जॉब करने के लिए। स्पोर्ट्स आप आपका जॉब है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन ओलंपिक्स इज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फाइट फॉर द मेडल, और करना क्या है आपको ओलंपिक्स में? तो इसलिए हम इसको कंट्रोवर्सी पता नहीं क्यों बनाना चाहते हैं। हर एक चीज़ शुड नॉट बी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, आई फील। पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट। It's about sports. Saina Nehwal, thank you so much for being here with me today. Thank you for sharing your story. Thank you for sharing from your heart what it means to be a sports person, and also the reality, the challenges of it, what it's taken you to come as far as you have, so people can learn from everything that you've achieved, but also your struggles. Thank you for sharing all of that so openly and being so candid with me. Thank you. As a token of appreciation, because it's called Sustainability with Shreya, I have a little gift for you. This is from an e-commerce marketplace called Suspire. Wow. It's a vegan, sustainable marketplace, Thank you so much. Thanks and a lot. they want to promote eco-friendly, sustainable living. So they curate all vegan and sustainable brands to Right. help consumers make more conscious choices. You've got some Nice. healthy, nutritious Suspire. products in there as a token of Made your mind with appreciation. our So thank you sustainability so much. crossword. Thank you so much. This is so nice. Of course, it's all healthy. Oh wow. Protein. Lot of protein. Wow. Definitely a lot of protein, a lot of vegan Protein protein. bar. Mocha bites. Wow. Thank you so much. Thank you. One thing you love but you wish you were better at. One thing you love doing but you wish you were better at that. I used to love painting. Yeah. Yeah. So I wish I could have continued it, but of course, because of the game, Okay. it had to take backseat. But I love doing it. Okay. Yeah. Your favorite Bollywood baddie. Baddie. What a big Shah Rukh Khan fan. Yeah, Baddie you're तो big मैंने, SR fan. yeah, big Shah Rukh. I love watching Bollywood movies, and Okay. Baddie ऐसा कुछ नहीं ध्यान दिया, but Shah Rukh fan, yeah. All right. Yeah. Where is superstition before a match?
Yes, I pray. Okay. Nothing like superstitious, but I pray and I go to temples. I love it, you know. I believe in force, you know. अगर कोई ऐसा force है जो आपको help कर रहा है, so I believe in that, yeah. That's a cool one. Describe your life in one hashtag. Hashtag hard worker. Love it. I love it. I like that. Yeah. Strangest fan request you've ever received. Strangest fan request तो नहीं, but काफ़ी लोग आए मेरे घर के पास, you know, when I was staying in another building. That point of time, I used to have 1-2 crazy fans following me from house to academy to house. Stalker, proper Oh my stalkers, god! yeah? And I was like, कैसे हो रहा है ये बैडमिंटन प्लेयर के साथ? But I was like, I said thank you so much, but it's not right, you know. I'm going to training and coming back. थोड़ा मुझे डर लगने लगा है. So they were like, मैम आपका फोटो चाहिए, मैम आपके साथ. I'm so sweet of them for waiting for me whole day, you know. घर से ट्रेनिंग से घर. मैंने कहा ऐसे मत करो, आप प्लीज़ आइए सीधा अकेडमी में, मुझसे फ़ोटो ले लीजिए, बट डोंट फॉलो लाइक दिस, यू नो. थोड़ा मतलब है, ऐसे क्रेजी फैंस भी होते हैं, बट उनका प्यार है जो ऐसा उन्होंने मुझे दिखाया है. बट आई जस्ट फील कि आप उधर आइए अकेडमी में, फ़ोटो ले लीजिए. Yeah. Yeah. Wow. Okay. One thing you'd like to say to young girls watching this. I would just want, as a sports person, I just want a lot of girls to be sports persons. Not that कि मैं उनको बोल रही हूँ कि आप बनिए, you know, just spend some time in the ground, play whatever sport you like, keep yourself fit and healthy, जितना जिम हो सके करिए, have good food, कभी कभी चीट कर सकते हैं, that's normal, it's fine, but आप just make sure आपका body healthy है, then only I think you can enjoy the life. Yeah. Otherwise, when I see some people, you know, in fact myself as well, you know, इतना travel करके, बाहर का खाना खा के, इतना मैंने struggle किया है, you know, I've gone through pancreas issues as well. तो मुझे लगा कि कभी कहीं मैंने शायद खाने पे और ध्यान नहीं दिया. जैसे मैंने बताया कि आपको, मुझे पहला कुछ न्यूट्रिशन के बारे में मालूम था एट द एज ऑफ 19 और 20. तब तक मैंने कुछ खा लिया होगा जो जिससे गट थोड़ा ख़राब हो गया हो, एंड my gut is not very good gut, but I just want to say कि जितना आप अच्छा खाएंगे उतना बेटर रहेगा. Consult anyone, you know, consult dietitians, very very important nowadays, because आजकल के हर एक फील्ड इतने डिफ़िकल्ट हो गए हैं कि आपके पास टाइम नहीं है अच्छा खाने का, या बाहर थोड़ा सा ट्रेनिंग या मतलब वर्कआउट करने का. तो आप एटलीस्ट एक डाइटिशियन ऐसा रखिए जो आपको अच्छा खाना बताए, और उसको फॉलो कीजिए ताकि आप एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी सके, एंड ट्रैवल द वर्ल्ड, because I think everyone wants to travel the world. I love to do it with my parents, with Kashyap, you know, and everyone should do it. सबका मतलब I think एक ख्वाब रहता है ये, and जो अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हार्ड वर्क कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, and जितना हो सके अपने आप को हेल्दी रखिए, is what I can say. Yeah. Okay. Second last question is one relationship or marriage advice. देखिए हमारा तो, because I know him from like 20 years now, so it's just been very good in a way that I can express anything to him. तो रिलेशनशिप में आई फील आप जितना अच्छा डिस्कशन या बातें कर सकते हैं, अपने दिल की बातें जो भी हैं आप डिस्कस कर सकते हैं. आई थिंक वो सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है. आई फील कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं अच्छे से. या And what does sustainability mean to you? सस्टेनेबिलिटी इज, आई फील, जैसे मुझे सब कुछ आया, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इट्स नॉट दैट कि आई वाज द मोस्ट टैलेंटेड वन, और या मुझे कुछ गिफ्ट था बॉडी में कि कुछ मैं ऐसा कर सकती. सब कुछ मैंने हार्ड वर्क से किया है. तो हार्ड वर्क से ही आपको सब कुछ मिलता है. सो मेरा तो सिंपल है, यू नो, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड is equal to everything. Thank you so much. Thank you. I've learned so much from this conversation. I appreciate your time so much. Thank you. Thank you for so much. having me. Thank you. Thank you so much.